Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 10, straight lines. Okay. Student, in the last part of the video, we had discussed the how to convert the general equation of a line into the various standard form like slope intercept form, and normal form. Okay. After that, we had discussed how to find the distance of a point from a line. Okay. And for that, we have wrote one formula, that is d is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. Okay. So today we will start from a topic, that is how to find the distance between two parallel lines. Okay. So our topic will be distance between two parallel lines. Okay. How to find distance between two parallel lines. Okay. And whenever we are talking about the distance will always be perpendicular. Okay. Whenever we talk about the distance, so we will talk about the perpendicular distance. Okay. So suppose student, we have to find the distance between two parallel lines. So first thing I want to tell you is that we all know that the slope of a parallel line is equal. Okay. We have studied the condition of parallelism as well as the condition of perpendicularity. The condition of parallelism was that when two lines will be parallel, their slope will be equal. Okay. So it means that whenever we will write two parallel lines, their slope will be equal. Okay. Second thing, student, we have to calculate the distance between the parallel lines. So we all know that distance between the parallel lines is same throughout the line. Means whenever we will take 2 points, one each on the different line, so its distance will be same. For example, suppose these two lines are there. So when we will calculate this distance, or we will calculate this distance, or we will calculate this distance, all distances will be equal because the distance between the parallel line don't change. Okay, change नहीं होता है, वो हमेशा same रहता है, constant होता है. Okay, क्योंकि अगर distance vary करेगा, so there will not be a parallel line, they will become intersecting lines. Okay, so I think this much things you already know. Okay, so let's start how to find out the distance between two parallel lines. It is very simple, but only we will take one concept, is that the slope of the parallel lines are equal. Okay, the slope of a parallel lines are equal. So let's discuss how to find the distance between two parallel lines. So see student, suppose I have drawn an xy axis like this. Okay. And one parallel line is like this, and the other parallel line is like this. Okay, there are two parallel lines. Suppose this is L1 and this is L2. Okay, and suppose I have written the equation of the parallel lines in slope intercept form. Okay, so suppose let the equation of parallel lines, that are L1 and L2 are y equal to mx plus c1 and y equal to mx plus c2. Okay, why I have written mx in both the equation? Because these two lines are parallel, so their slope will be equal. So that's why in both the equation I have written same m. Okay, suppose it is equation number 1 and it is equation number 2, and it is given that L1 is parallel to L2. ठीक है, L1 जो है वो L2 क्या है, पैरेलल है. तो हमको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट. अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इट मींस दैट द स्लोप ऑफ बोथ द लाइन विल बी सेम. सो आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. So the equation of first line is y equal to mx plus c1 and the equation of second line is y equal to mx plus c2. Okay. Now we have to find the distance between two parallel lines. Okay. So students, one thing you can tell me, if this line, when this line will cut x-axis, so what will be the coordinate of this point? Tell me. What will be the coordinate of this point? If the line 1 represents, this is the line 1, ठीक है,
and this represent y equal to mx plus c1 and this represent y equal to mx plus c2. ठीक है, it is c1, it is c2. ठीक है, so when this line intersect x axis, so what will be the coordinate of this point? Suppose this point is p, and when you will find out the coordinate of p, so see, when line L1 intersects x axis at p, so in that case y will be 0 na student. So line L1 when intersect x axis, so I can write y equal to mx plus c1. So when it will intersect x axis, so y will be 0. So 0 equal to mx plus c1. So the value of x will come minus c1 upon m. ठीक है, so it means that the coordinate of this point will be minus c upon m comma 0. ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया. So coordinates of p is minus c1 upon m comma 0. ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी पॉइंट से इस L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो यही तो डिस्टेंस होगा ना दोनों लाइंस के बीच का. इफ आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू दिस लाइन L2, so this will be the distance between the parallel lines. Suppose this distance is d. ठीक है, this distance is d. So what I have done, suppose this is PM. So PM will be perpendicular to L2. ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर कोई लाइन है, इफ अ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ a x plus b y plus c equal to 0, और we have to find a distance of a point from that line. So what is the formula? जैसे एक लाइन थी यहां पर ऐसे a x plus b y plus c equal to 0, एक पॉइंट था p that is x1 comma y1. तो इसकी इससे डिस्टेंस क्या थी? d is equal to mod of a x1 plus b y1 plus c divided by under root a square plus b square. यही तो होता है किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला. ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो वही चीज करना है. अब देखो पॉइंट यहां पर ये है, इस पॉइंट से मैं इस लाइन में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वही तो दोनों लाइंस के बीच में पर डिस्टेंस होगी. ये डिस्टेंस ही तो है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस. और ये वाला पॉइंट मैंने किस पे ले लिया है? L1 पे. आप चाहते तो सेम चीज आप L2 से भी कर सकते थे. आप L2 का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते और L1 पर ड्रॉ करते, तब भी वही चीज होता. मैंने क्या किया, L1 पर एक पॉइंट ले लिया और वहां से उसकी डिस्टेंस इस L2 से निकाल दी. वही डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी. आप चाहते तो L2 पे भी बांध के कर सकते थे. उस केस में क्या कोऑर्डिनेट होता? C2 अपॉन m कॉमा 0, और वही चीज आप L1 पे ड्रॉ करते. तो बात वही है, चाहे आप L1 से L2 पे करो चाहे L2 से L1 पे करो, बात एक ही है. तो हमने L1 पे एक पॉइंट ले लिया P, और P से हमने इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड की, कितने डिस्टेंस पर है ये. तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा स्टूडेंट्स? आवर सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड इज y इक्वल टू mx प्लस c2. अब मुझे इस पॉइंट की इसी से डिस्टेंस फाइंड करनी है. अगर मैं इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लूं तो वही हमारा दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा. तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. कैसे? mx माइनस y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. और इसकी मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज d. तो क्या हो सकता है स्टूडेंट? क्या होगा? यहाँ पे x1 कॉमा y1 कितना दिया हुआ है? माइनस c1 अपॉन m कॉमा 0. तो इसमें पुट कर देते हैं बेसिकली. तो m है ये, x की जगह x1 होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p. सो इट विल बी माइनस c1 अपॉन m. अच्छा y, तो y तो यहाँ पे 0 है, y1 पुट करते हैं हम, लेकिन y तो 0 है यहाँ पे, तो ये 0 हो गया. एंड प्लस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट में क्या होता है? अंडर रूट में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना. a स्क्वायर यहाँ पे मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? m का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, यही आएगा. बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई किया है स्टूडेंट. देखो अगर ये लाइन होती है और कोई पॉइंट P होता है तो उससे डिस्टेंस क्या होती है? ax1 प्लस b y1 प्लस c इक्वल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई किया है.
देखो a की जगह पर m है और x की जगह हमको x1 पुट करना है, इस पॉइंट से फाइंड करना है डिस्टेंस ना, तो यहाँ पे x1 कितना है -c1/m, तो x की जगह ये पुट कर दिया। फिर y है माइनस में y है तो y की जगह y1 पुट करना है और y1 हमारा 0 है तो 0 ही हो गया, और प्लस c2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है m, तो m का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बस हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आ गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रूफ है, अगर आपको ये प्रूफ बहुत सिंपल है, मैंने एक पॉइंट पहले पहली लाइन पे मान लिया और उस पॉइंट से दूसरी लाइन से डिस्टेंस फाइंड कर लिया, वही डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, तो यहां से इन विंटर जनरली इट ऑलवेज सीम्स टू बी वेट। नाउ d इज इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो मॉड ऑफ, मॉडुलस इसलिए लगाते हैं बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट्स व्हाई वी केप्ट मॉडुलस। ओके, तो यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा -c1, यहां से -c1 प्लस c2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, या d इक्वल टू, इसको हम लोग c2 माइनस c1 है ना, ये लिख सकते हैं इसको c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2, तो उसको ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। यही हमारी जो डिस्टेंस होती है, यही हमारे किसकी बीच की डिस्टेंस होती है, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट। अब देखो प्रॉब्लम ये है, m क्या है, m जो है वो लाइंस का स्लोप है, आपको स्लोप ऑलरेडी पता होता है, और c1 और c2 पहले लाइन का y इंटरसेप्ट और दूसरी लाइन का y इंटरसेप्ट। ठीक है, c1 क्या है पहली लाइन का y इंटरसेप्ट, c2 क्या है दूसरी लाइन का y इंटरसेप्ट। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो तो, मतलब कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो, तो आप किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है, तब भी आ जाएगा। देखो प्रोसेस क्या था कि हमने पहले दो लाइन को एज्यूम किया, दैट इज L1 L2। ठीक है, दोनों का इक्वेशन लिखा किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इक्वल टू mx प्लस c2। क्यों, m दोनों में सेम है, बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल लाइन, सो देयर स्लोप विल बी इक्वल। अब दोनों लाइन मान लो x एक्सिस पे कट कर रही है, तो मान लो मैंने L1 का वो पॉइंट निकाल लिया जो x एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट इज p। ठीक है, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ये वाली इक्वेशन x एक्सिस तो कट कर रही है, तो वहां पे y तो 0 होगा ही, तो y 0 होगा तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आई थी हमारी c1/m। ठीक है, x की वैल्यू आई थी c1/m, सो p का कोऑर्डिनेट हो गया -c1/m, 0। ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट। अब हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना, तो अगर कोई लाइन है और एक पॉइंट p है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये था। ठीक है, अच्छा आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल लू इस लाइन से, तो वही तो डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की। अगर मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट की इस L2 से डिस्टेंस क्या है, तो वो d है, और ये वाला पॉइंट तो लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यही वाली डिस्टेंस क्या होगी, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस होगी। तो हमने वो वाले फॉर्मूला यूज किया और इसको कैलकुलेट कर लिया, दैट इज d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब यूज करना है आप जब आपका इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो तब। ठीक है, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सपोज करो कि अगर इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन के टर्म्स में दिया हुआ, लाइक ax1 प्लस by1 प्लस c इस टाइप का दिया हुआ है, तब कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बताता हूं, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है d, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस when the equation of the line given in the slope intercept form where c1 and c2 are the y intercept of equation 1 and 2 and m is the slope of the lines। ठीक है, अब मान लो ये तो एक केस हो गया। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ही हो, बना सकते हो आप किसी भी इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लो बनाने की जरूरत क्या है, मान लो कोई जनरल इक्वेशन दे दे
किसी लाइन का जनरल इक्वेशन दे दे तब कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे, ठीक है, तब कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे, तो उसका भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको भी आप इसी मेथड से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक मैंने प्रूव बता दिया है तो वो भी बिल्कुल यही इसी मेथड से होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये प्रूफ समझ में आ जाएगा तो वो वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि जो दोनों लाइंस हैं स्टूडेंट्स, दोनों जो लाइंस हैं मान लो ऐसी कुछ है, ठीक है, एक मिनट, बिकॉज इट इज टू वेट दैट्स व्हाई आई एम इरेजिंग टू मेनी टाइम्स, ओके। नाउ सपोज स्टूडेंट्स इक्वेशन, इफ सपोज दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन के टर्म्स में दिया हुआ है, जो दो लाइंस हमारी पैरेलल से उनका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो जनरल लाइन के टर्म में दिया हुआ है, तो देखो अगर सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइंस लाइक दिस, अगर दो पैरेलल लाइंस ऐसे दी हुई हैं, ये L1 है ये L2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। यहां पे देखो मैंने a और b को सेम क्यों लिया है स्टूडेंट, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो उनका x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट इक्वल होता है, आप देख लेना, कभी भी देखना आप, उनका x और y कोफिशिएंट सेम आएगा, किसी भी तरह सेम आएगा ही आएगा, तो आपको मैं बता दूंगा एक दो क्वेश्चन करके, सेम ही आएगा, तो इसलिए ये दोनों चीजें सेम रहती हैं, x और y का कोफिशिएंट सेम रहता है, बस c1 और c2 अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, तो लेट जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइंस, जनरल इक्वेशन ऑफ two parallel lines L1 and L2 are, पहला है क्या, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका भी प्रूफ बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन देम जैसे मैंने इसके पहले बताया था, डिस्टेंस बिटवीन देम d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों पैरेलल होते थे तो क्या कंडीशन होता था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही होता था ना, मतलब कि a और a का रेशियो और b और b का रेशियो तो सेम होता था, लेकिन c1 और c2 का रेशियो सेम नहीं होता था, पढ़ा था ना ये चीज आपने क्लास 10 में। इसी वजह से इसका x और इसका x का कोएफिशिएंट सेम है, इसका y और इसका y का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c1 एंड c2 व्हिच इज नॉट सेम, क्योंकि अगर ये भी सेम हो जाएगा तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, और कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आपने पढ़ा था, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस नहीं होगी। आप सभी को पता है कि पैरेलल लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन, ठीक है। इसी वजह से दोनों इक्वेशन का दोनों के s कोएफिशिएंट भी सेम, दोनों के y कोएफिशिएंट भी सेम। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन दिया हुआ है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो पक्का उनके x और y कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, आपको बनाना है तीसरा इक्वल, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इन टर्म्स ऑफ c1 c2 एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, वेरी सिंपल इट इज स्टूडेंट्स। अगर जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही दिया हो, ठीक है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर इक्वेशन कुछ इस टाइप का है, अगर दो इक्वेशन इस टाइप का है, y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इक्वल टू mx प्लस c2, अगर इस टाइप का इक्वेशन है,
ये तो जनरल इक्वेशन है। अगर इस दो लाइंस का एक पैरेलल लाइंस का इक्वेशन इस तरह दिया हुआ है, अब आपको देख के पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल इसलिए है क्योंकि उनका स्लोप सेम है। अगर स्लोप सेम है तो पैरेलल है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये यूज करना। और अगर जनरल फॉर्म दिया होगा तो ये यूज करना, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लाइंस का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हुआ, मतलब कि ax प्लस by प्लस C1 टाइप का दिया हुआ है, तो आपको ये यूज करना है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पर a b और c क्या है, a और b x और y कोएफिशिएंट है और C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन जब दो लाइंस का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो तो वहां पे C1 C2 क्या है, x और y इंटरसेप्ट है दोनों लाइंस के। C1 है पहले इक्वेशन का y इंटरसेप्ट, C2 है दूसरे इक्वेशन का y इंटरसेप्ट, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस था मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। जनरली आपको जनरल फॉर्म में देखने को मिलेगा, जनरली आपको जनरल फॉर्म में ही देखने को मिलेगा इक्वेशन को। आप क्या कर सकते हो कि जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और तब भी कर सकते हो, तब भी सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो या तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। तो अगर दो लाइंस का जनरल इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, अगर दो लाइंस का इक्वेशन जनरल इक्वेशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर दो लाइंस का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस था। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होगी तो वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट जितना भी कॉन्सेप्ट जरूरी था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब केवल क्वेश्चंस बचे हैं जो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन इट, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, ठीक है। I hope you have noted down. चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 3x minus 4y plus 5 equal to 0, ठीक है। अब यहां दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, जनरल फॉर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले लाइन 1 के लिए लिख लो, लाइन 1 क्या है हमारी, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और लाइन 2 है क्या हमारी, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो देखो दोनों के x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट इक्वल है, केवल C1 C2 है चेंज, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करें स्टूडेंट तो वी विल गेट x। अगर दो लाइन के इक्वेशन को इस वाले को किससे कंपेयर करें, हमने क्या पढ़ा था, एक इक्वेशन था हमारा ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरा था ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0, यही दो पढ़ा था। अगर इन दोनों को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -4। पहले लाइन के लिए C1 कितना है 7 और दूसरे लाइन के लिए C2 कितना है 5। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होती है स्टूडेंट, फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस
distance between parallel lines, that is d is equal to mod of c1 minus c2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर c1 c2 क्या है, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म और दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। c1 इज 7, c2 इज 5, a हमारा है 3 का स्क्वायर एंड b है -4 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 का मॉड 2 का मॉड हुआ और नीचे आ गया 9 प्लस 16, बिकॉज इट इज डिस्टेंस तो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली, तो मॉड 2 तो हमारा 2 ही बचेगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 25, सो इट विल बी 2/5। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन इट, ऐसे ही क्वेश्चन को ट्राई करना है स्टूडेंट्स, ओके। Please note down it, students. Now student, another question based upon the distance between the lines is that find the distance between the lines 3x plus 4y equal to 9 and 6x plus 8y equal to 15, ठीक है। दो लाइंस का इक्वेशंस गिवन है स्टूडेंट्स, हमको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। अब ये नहीं पता है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं, ठीक है। अब देखो पहली लाइन क्या है हमारी, द लाइन फर्स्ट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। और लाइन 2 क्या है, लाइन 2 है हमारी 6x प्लस 8y इक्वल टू 15, इसको पहले ऐसे लिख दिया 6x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल ही हैं, ठीक है। पैरेलल इसलिए है क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इसको सॉल्व करोगे तो -3/4 यहां से आएगा और -3/4 यहां से भी आएगा, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल ही हैं। और मैंने बताया था ना पैरेलल में दोनों इक्वेशंस के a और b आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम होता है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस कैसी हैं, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो हमारा तो यहाँ पे a और b सेम नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको सेम बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको या 2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 15/2 डिवाइडेड बाई, यही बनेगा। क्या किया मैंने इसको देखा, पहले आप जो भी लाइंस दिया है उसको स्लोप निकाल कर देख लो क्या स्लोप सेम आ रहा है। अगर स्लोप सेम आ रहा है तो यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस में दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम था और y का कोफिशिएंट भी सेम था। देखो दोनों इक्वेशन में x का भी कोफिशिएंट a है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट a है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट b और यहाँ भी y का b है। तो हम लोग को जब पता चल जाए कि दोनों पैरेलल लाइन से, तो हम लोग दोनों के इक्वेशंस के x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे तो उसको और सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या किए हैं, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किए हैं तो 3x प्लस 4y माइनस 15/2 आ गया है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन का x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू हमें 3 मिलती है, b की वैल्यू हमें 4 मिलती है, c1 की वैल्यू हमें -9 मिलती है, c2 की वैल्यू हमें -15/2 मिलती है, ठीक है। सारे कैपिटल में ही है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ये हो जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली,
तो C1 की वैल्यू कितनी है -9, फिर माइनस है, और C2 की वैल्यू -15/2 और डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये -9 प्लस 15/2 आएगा और ये आ जाएगा √25। ठीक है, √25 ही तो आएगा क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 ही होगा। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व कर दूं, यहां के बाद यहां, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हमें, -3/2 आई थिंक ऊपर मिलेगा। ठीक है, -3/2 ये हो जाएगा -18 प्लस 5 18 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 5, यही आएगा। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आ गया -3/2 का मॉड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। देखो, इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट आप, इसके थोड़ा ऊपर स्पेस नहीं है इसकी वजह से, तो ये 2 है, एलसीएम लोगे ऊपर का तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 -18 प्लस 15 पूरे का मॉड डिवाइडेड बाई 5, यही आएगा। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3/2 का मॉड अपॉन 5, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -3/2 का मॉड तो 3/2 ही होगा और नीचे 5 है, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3/10 आएगा आंसर। आंसर विल कम 3/10। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। जो भी इक्वेशन दिया हो आपको, पहले आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, जनरल फॉर्म में, वहां से आप A, B और C1 C2 निकालिए और फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और जब भी डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बोलेगा ना तो पक्का वहां पे पैरेलल लाइन ही होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन ही होगी वो, क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, और ऑब्वियस अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो कोइंसिडेंस होंगी। कोइंसिडेंस होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, और इंटरसेक्टिंग होगा तो कभी डिस्टेंस 0 होगा, कभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फाइंड करने को, तो इसका मतलब जो लाइंस गिवन होंगी वो पैरेलल ही होंगी। बस आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट को सेम बनाना है। मतलब कि इसका एक पहले इक्वेशन का जो एक्स कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन के एक्स कोफिशिएंट से मैच करे। सिमिलरली पहले इक्वेशन का जो वाई कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन के वाई कोफिशिएंट से मैच करे, और C1 C2 अलग हो सकता है। ठीक है, पहले का C1 दूसरे का C2। तो हमने देखो यहाँ पे दोनों का क्या किया, सेम किया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बस यहाँ C1 C2 अलग अलग है, वो किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, लोकस क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, लोकस, ये इसके बारे में आप लिख लो, ये आपको हेल्प करेगा, ये आने वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा। और अगर किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो तो करते क्या है, पहले बात लोकस होता क्या है, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर बताता हूं उसका मतलब क्या होता है। ओके, इसका पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सो लोकस, लोकस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, लोकस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस। पहले इसका डेफिनेशन लिखता हूं, the curve described by the point under some given condition is called the locus of a point। ठीक है, मैं लिख देता हूं, the curve described by a point which moves under certain condition
certain condition is called its locus. ठीक है, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब होता है, मतलब कि जो कर्व बनता है वो पॉइंट कुछ ऐसा मूव करता है, कुछ कंडीशन के थ्रू मूव करे। अगर कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिससे वो सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और जब वो फॉलो कर रहा है तो उससे कर्व बन रहा है, तो उस पॉइंट का जो पाथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? लोकस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने बोला था कि इन द सर्कल द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। आपको पता है ना कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लो और सेंटर से उसको ज्वाइन कर दो, तो जो आता है वो रेडियस होता है, वही उसका क्या हो जाता है? लोकस। वही उसका क्या होगा? लोकस। ठीक है, तो द कर्व डिस्क्राइब, मतलब कि किसी पॉइंट की मदद से जो कर्व बन रहा है, और वो कर्व कैसे बन रहा है? जब वो पॉइंट मूव कर रहा है और कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? इट्स लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट। लोकस इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट इन विच द पॉइंट मूव्स अंडर सम गिवन कंडीशंस। ओके, फिर से बता दे रहा हूं, लोकस क्या होता है? लोकस किसी भी पॉइंट का एक पाथ होता है जिसपे वो फॉलो करता है कुछ कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, कुछ कंडीशन के बेसिस पे वो एक पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, और पाथ को जब फॉलो करता है तो वो क्या बनाता है? कर्व। उसी को क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब देखो किसी भी लोकस का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, अगर मान लो आपको किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए एच कॉमा के। ठीक है, एच कॉमा के मान लोगे आप। उसके बाद एक्सप्रेस द कंडीशन इन्वॉल्विंग एच कॉमा के। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा जिसमें आपको एच और के में कुछ रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, एच और के में रिलेशन बनाओगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिक्वायरमेंट्स इन द क्वेश्चन, और एंड में क्या कर दोगे? एच को एक्स से रिप्लेस कर दोगे और वाई को के से रिप्रेजेंट कर, वाई को के को वाई को रिप्रेजेंट कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, जैसे कि किसी आपको मान लो किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, सो टू फाइंड द लोकस ऑफ एनी पॉइंट P, assume its coordinate h, k। ठीक है, क्या करो? जब भी आपको किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है, क्या करो आप? उस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट मान लो h, k। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस द कंडीशन इन्वॉल्विंग h एंड k, और जो कंडीशन मेंशन हो उसको एक्सप्रेस करिए किसके टर्म्स में? h और k के टर्म्स में। ठीक है, एंड सॉल्व इट, एंड इन द फाइनल प्रोसेस, इन द फाइनल स्टेप, and in the final step replace h by x and k by y। ठीक है, पहले क्या होता है लोकस? तो जो कर्व बनता है किसी पॉइंट की मदद से, जब कोई पॉइंट किसी कंडीशन के थ्रू मूव करता है तो वो एक पाथ को फॉलो करता है। कोई भी पॉइंट जब मूव करता है तो वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करता है, और जब वो कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पाथ बनाता है उसी को कर्व बोलते हैं, और उसी को लोकस ऑफ द पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? उस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k। उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया होगा उसकी मदद से कोई कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे किसके टर्म्स में? h, k टर्म्स में, और फिर सॉल्व करेंगे। और जब सारा स्टेप्स हो जाएगा तो लास्ट में क्या करते हैं? h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से। ठीक है, यही होता है किसी भी पॉइंट के लोकस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। कोई पूछे कि व्हाट इज द लोकस, तो आप बोलोगे द पाथ
डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन, ठीक है, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशंस इज नोन एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। और जब कोई पॉइंट किसी कंडीशन के थ्रू पाथ में फॉलो करता है या पाथ फॉलो करता है तो वो एक कर्व को ही बनाता है, ठीक है, जैसे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल या लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे तो आप ये बोलोगे लोकस क्या होता है, लोकस इज द लोकस, कोई भी पाथ, किसी भी कर्व का लोकस क्या होता है कि वो किसी कंडीशन के थ्रू कोई पाथ फॉलो करता है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, द कर्व, एक पॉइंट की मदद से जो कर्व बन रहा है, जब वो पॉइंट किसी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है। द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अंडर सम गिवन कंडीशन इज कॉल्ड लोकस, एंड व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट you have to assume its coordinate h, k, express the condition involving h and k, solve the process, and in the end replace h by x and y by, replace h by x and k by y, ठीक है। ये होता है लोकस। लोकस मतलब कि किसी भी पॉइंट का पाथ जिससे कोई कर्व बनता है उसी को लोकस बोलते हैं। किसी भी पॉइंट का पाथ जिससे कोई कर्व बने अंडर सम गिवन कंडीशन, उसी को क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है, उस पॉइंट का। द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन इज नोन एज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज नोट डाउन इट। In the next part, student, I will tell you some question based upon the locus and the reflection of point, and then this chapter is over. Listen, student, the exercise 10.3, the starting questions. In the first question, you have to convert all the equation in the slope intercept form. Then in the second question, in the intercept form. In the third question, in the normal form. In the fourth question, you have to find the distance. In the fifth question, again you have to find the distance. Sixth question, again you have to find the distance. Means all questions. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपको दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो दो लाइंस के बीच के एंगल फाइंड करना है तो पहले आप दोनों लाइंस के का स्लोप निकाल लेना, दैट इज m1 m2। और आपको भी पता है कि अगर स्लोप पता हो तो दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 10.3 का जो आपसे ना हो। फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा आपको इस एक्सरसाइज का, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर से, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ओके। So I think whatever things I taught you today, that is clear to you. The important question and the sum question of exercise 10.3 that we will discuss in the next part. One more thing, with the help of this concept you can solve full chapter, okay. Whatever things I taught you, with the help of that one you can solve full chapter. It means you can solve all the questions of exercise 10.3 also, and some question of exercise miscellaneous exercise also, okay. So try the questions, and if any doubt is there, then tomorrow I will take one more part of this chapter so that your confusion will be clear, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी जो जितना बता दिया है आपको 10.3 आराम से लग जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के और भी 3-4 वो मैं कल बता दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सो आई होप you are studying properly and you are solving the questions. So remaining thing of the chapter we will discuss in the next part, students. So till then, have a nice day, take care, thank you.